Basis of the shape, bacteria are categorized into 4 category. The first one is known as spherical cocci or spherical shaped bacteria, which is round shaped bacteria. जितने भी होते हैं उनको spherical coccus के अंदर रखा जाता है. Second is a rod shaped bacteria because they have a rod kind of shape. नेक्स्ट इज कोमा शेप्ड बैक्टीरिया और वाइब्रियम बिकॉज इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कोमा टाइप का शेप होता है. लास्ट इज अ स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया क्योंकि इसका शेप कैसा है, स्पाइरली अरेंज्ड है ये. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप बैक्टीरिया आर कैटेगराइज्ड इनटू दीज 4 category. So bacteria have extreme behavior. Their metabolic activity is very different. They are photosynthetic as well as chemosynthetic in nature, or they are also parasitic and as well as they are saprophytic in nature. So bacteria का जो behavior है वो बहुत different होता है. So student, अब हम बैक्टीरिया सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं. तो in any bacteria or in a large number of bacteria they have a slime layer outside. तो उनके आउटसाइड में एक स्लाइमी लेयर प्रेजेंट होती है. दैट लेयर इज कॉल्ड कैप्सूल. So it is mainly made up of polysaccharide and nitrogenous substances, or we can say amino acids और polysaccharide की एक outer covering present होती है which is called capsule. और slowly ये कैसी हो जाती है, thick हो जाती है ना. मेनली पैरासाइट्स जो होते हैं उनमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है. जैसे कि एक एग्जांपल हम देख सकते हैं डिप्लोकोकस निमोनाई का, उसमें ये कैप्सूल की कवरिंग प्रेजेंट होती है. सो दिस इज कैप्सूल. नेक्स्ट इज cell wall. So what is cell wall? Cell wall already we know it's some kind of a strong rigid structure which is present outside the plasma membrane. तो मतलब cell wall का काम क्या होता है? Cell wall का काम होता है एक तरीके से किसी उसको प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन करना, कवरिंग एक प्रोवाइड करना, है ना, ताकि वो किसी भी तरीके की कंडीशंस में सरवाइव कर सके. So cell wall is a outer membrane which is present outside the plasma membrane. Plasma membrane के बाहर present होती है which is strong and rigid in nature. It is made up of from polysaccharides, lipids and amino acids. तो प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स की ये सेल वॉल बनी हुई होती है. एंड द मेन फंक्शन ऑफ अ सेल वॉल इज टू प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. इनसाइड द सेल वॉल, मतलब सेल वॉल के अंदर देयर इज अ मेम्ब्रेन, इलास्टिक वेरी थिन मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. दैट थिन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड plasma membrane. So plasma membrane is very selective in nature, है ना. We already know the function of plasma membrane. It's a semi-permeable, elastic and very thin layer which is selective in nature. So whatever the things which we go inside, it is the plasma membrane, है ना. It is the plasma membrane which decides कि कौन सी चीजें अंदर आनी है और क्या चीजें बॉडी से बाहर जानी है. तो जो भी मतलब इनसाइड कुछ भी आता है या आउटसाइड जो भी चीजें जाती हैं विच इज थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर एंड वेरी थिन इन नेचर. सो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Next is a cytoplasm. So cytoplasm is a complex aqueous or semi-fluid matrix which is present inside the plasma membrane. And in this cytoplasm, the cell organelles or whatever the things is present, like ribosomes are present, genetic material are present, है ना. So lysosome is present. So all the cell organelles are present inside the in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म में ही ये सारे सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट करते रहते हैं. इट ऑल्सो कंटेन मैनी एंजाइम्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स, carbohydrate, all the things are present in the cytoplasm. Next is nucleoid. Nucleoid is also called genophore. So nucleoid is a genetic material which is present in the cytoplasm. So cytoplasm में nucleoid भी present होता है. ये क्या है, जेनेटिक मटीरियल है. ठीक है. तो ये जेनेटिक मटेरियल का फंक्शन क्या होता है, इट्स अ हेरिडिटरी, मतलब वो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, और जो भी कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होते हैं थ्रू द जेनेटिक मटेरियल ही होते हैं. सो सिंपली द डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ओनली बिकॉज ये प्रिमिटिव काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं. इनमें कोई भी प्रॉपर न्यूक्लियस
और इस तरीके से जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये सारे जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। तो क्या होता है इसमें, सिर्फ साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल स्प्रेड होता है, स्कैटर्ड होता है। नेक्स्ट इज प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड इज अनदर जेनेटिक मटेरियल in most of the in many bacterias जेनेटिक मटेरियल और डीएनए के अलावा भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट होता है विच इज सर्कुलर इन नेचर। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा डीएनए जो हम कह सकते हैं, इट्स अ एक्स्ट्रा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और डीएनए इज प्रेजेंट स्पेशली इन द इकोलाई सेल में हमको इस तरीके से प्लाज्मिड देखने को मिलता है, जिसका आज के टाइम पे जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो इकोलाई के थ्रू, बिकॉज इकोलाई हैव एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल एंड दिस जेनेटिक मटेरियल इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। बहुत सारी मेडिसिन को बनाने में, बहुत सारे काम में इस इकोलाई, ये वाले जो प्लाज्मिड है, इसका इस्तेमाल होता है। सो नेक्स्ट इज फ्लैजेला। सो इन अ बैक्टीरिया सेल, flagella is present is a protoplasmic appendages which is present outside the surface which help in the movement of bacteria। और ये किस में हेल्प कर रहा है, बैक्टीरियल मूवमेंट में हेल्प करता है। सो फ्लैजेला का फंक्शन क्या है, ये बैक्टीरिया को मूवमेंट में और स्विमिंग करने में, फ्लोटिंग करने में पानी में, इसमें हेल्प करता है फ्लैजेला। इस और लास्ट इज पिले और इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिम्ब्रे। So besides the flagella के अलावा भी there is an hair-like projection or hair-like outgrowth is present that is called on the surface of the bacteria, that is called pili or fimbriae. It is made up of from pillin protein and it is also help in, sometime it is also help in the reproduction. So I hope student आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा।